Hello students, now again I am here with your third lesson of civics, electoral politics. Now today I will take your third subheading, that is your electoral system. Electoral system has certain procedures, certain steps which are to be followed by election or the conduction of election. Now electoral system and revision of list. First of all, it is the duty of the election commission to make the voter list ready. That means they have to include the persons, those who have attained the age of 18 years, and they have to cut the name of the persons, those who do not exist. That means they have met with their death. The second one is your nomination of the candidate. So, electoral system, the second step is nomination of the candidate. The person who wants to stand in the election, they have to give their names to the election commission. So, they have to be nominate themselves. अपना नाम दर्ज करवाना जिसको आप हिंदी में बोलते हो. Then is your the scrutiny of the nomination paper. Those who want to participate in the election, they just nominate themselves as the candidate. Sometimes from a particular party or sometimes individual only. But it is the duty of the election commission that they have to make scrutiny. Scrutiny means they have to select the perfect candidate. They have to select that person who fulfill all the rules and regulations for the nomination. So then is your election campaign. Election campaign means elections after the nomination of the candidates. Election commission gives some time to those candidates to appeal to the voters. वो वोटर्स के पास जाके वोटर्स के लिए अपनी पार्टी का, अपने जो उनको पार्टी सिंबल दिया जाता है या उनके लिए जो सिंबल पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सिंबल दिया जाता है उनको, वो उसको दिखाते हैं और उनसे प्रोमिसेस करते हैं दैट दे आर गोइंग टू फुलफिल देयर डिमांड्स. सो दैट election campaign is done. Then is your poll by EVM. Then is your EVM is there. EVM means electronic voting machine. Nowadays we have our elections with the help of electronic voting machines. Previously, when these electronic voting machines were not there, you must be aware of the valid papers. That means वो papers के ऊपर उनके symbols बने होते थे, हर पार्ट था कैंडिडेट का, वहाँ पर उनको एक स्टैम्प लगा के उस पेपर को फोल्ड करके दे हैव टू पुट इट इन द बैलेट बॉक्सेस. देन इज़ योर काउंटिंग ऑफ वोटर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. वंस द elections are conducted, after that 1 day is fixed to count the votes and the declaration of result. So whosoever wins, that declaration of result is done. So this is the procedure which is followed in an electoral system. The next one heading is your powers and functions of the election commission. So there are certain powers of election commission. The first one is preparation of electoral roll. सबसे पहले जो मैंने आपको ऊपर ही बताई कि वोटर लिस्ट को तैयार करने की जिम्मेवारी हमारे इलेक्शन कमीशन की होती है. सबका पता लगाना, एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर्स हैं और कितने उनमें से ज़िंदा हैं, कितने नहीं हैं, वो सब नई जो लिस्ट बनानी है, दैट इज़ मेड बाय द इलेक्शन कमीशन. सेकेंड वन इज़ योर रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. एक पर्टिकुलर पर्सन ने या पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अपने लिए जो खड़ा हो गया वो नॉमिनेट, उसको एक पार्टी का सिंबल देना है या उसको वो इंडिविजुअल कैंडिडेट की तरह खड़ा होगा, ये भी डिसाइड करता है हमारा इलेक्शन कमीशन. Now the next one is your allotment of symbols. उनको सिम्बल्स देने की जिम्मेवारी, यानी पार्टी को अगर कर दिया है, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा है तो जो उस पार्टी का सिंबल होगा दैट विल बी गिवन टू अ पर्टिकुलर कैंडिडेट. और अगर एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है, यानी स्टेट में कई बार होता है कि हर कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक नई बनाने की कोशिश करता है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल को निश्चित करना, दैट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन. आई टेक वन एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक आप पार्टी which came into existence 4-5 years back only. तो उनको जो सिंबल दिया था
दैट सिंबल वॉज गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ओनली। अब आपको पता है आप पार्टी का जो सिंबल है दैट इज़ झाड़ू, उन्होंने अपनी चॉइस से नहीं लिया है, दैट इज़ गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन। नाउ नेक्स्ट इज योर कंडक्टिंग इलेक्शन। इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, किस स्टेट में कब इलेक्शन होंगे या एक किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब इलेक्शंस होने हैं, वो सारा का सारा डिसाइड होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही। दिस इज द रिस्पॉन्स होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। देन इज योर ensuring free and fair election. This is also the duty of the election commission, that elections must be free and fair. Nobody should be pressurized, nobody should be threatened to give vote to a particular party, and all the votes should be in a free manner. I mean the voters must be feeling free to give vote to any of their candidate. The next heading, subheading is challenges of election commission. There are certain challenges when when we have the responsibility, then there are some challenges also. So election commission is also having challenges. They are money, power in election. Sometimes particular parties uses money power, and whenever the money power is there, it becomes difficult for the election commission to maintain the dignity of free and fair election. बोला जाता है ना इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए, तो वो कैसे होंगे जब वो पैसा देकर एक पर्टिकुलर पार्टी या एक कैंडिडेट अपने लिए वोट मांग रहा है। सेकेंड वन इज़ योर वायलेंस एंड मसल पावर। कई बार वायलेंस और मसल पावर का यूज़ जो होता है दैट ऑल्सो बिकम्स द चैलेंज फॉर इलेक्शन कमीशन। देन इज़ योर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कई बार जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स जो होते हैं वो भी अटैच हो जाते हैं, इधर दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्टी और दे समटाइम्स स्टैंड देमसेल्व्स एज द कैंडिडेट, वो खुद खड़े हो जाते हैं। तो उस समय में इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाती है टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देन इज़ योर involvement of big families. Sometimes this kind of thing is also there and it also become a problem. बड़ी families, those who have money with them, they also make the election commission duties little bit complicated, क्योंकि अब election commission को ही संभालना होता है that the money which is given by the government to a particular party to spend on the election campaign, only that much money is to be spent. अगर उसी लिमिटेड अमाउंट में उनको अपनी कंपेनिंग करनी हो तो दैट विल बी फ्री, बट जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो दे कैन अट्रैक्ट मेनी ऑफ द वोटर्स फॉर देम, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। तो दिस ऑल्सो makes our system, election system, little bit complicated. The next one is your similar promises. कई बार एक ही तरह की जो promises हैं they are made by the different political parties. So this also become a challenge for the election commission. इलेक्शन कमीशन के लिए वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि दोनों ही पार्टीज़ ने एक जैसा ही सब कुछ हमें दिया हुआ है, कैंडिडेट्स भी एक जैसे ही हैं, तो whom that person और whom the ticket should be given, किसको टिकट दी जाए किसको नहीं। तो कई बार दो पर्सन्स भी एक पर्टिकुलर पार्टी से आ सकते हैं या दो पर्टिकुलर पार्टीज़ जो हैं उनके दोनों के प्रोमिसेस एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है, पर उनको एक संभाल कर उनको एक दिशा निर्देश देते हुए उनके लिए इलेक्शन में खड़े होने की जो जिम्मेवारी है वो प्रूव करना उनको, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन द लेसन। बाय इलेक्शन, it means an election held to be fill a vacancy caused by either death और रेजिग्नेशन और एनी अदर रीज़न, ये बाई इलेक्शन होते हैं। बाई इलेक्शन मतलब किसी पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने आप बीच में ही अभी टाइम हमारे पास है लेकिन बीच में ही उन्होंने अगर रिज़ाइन दे दिया हुआ है तो उनको बाई इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। दैन इज़ योर कंपेनिंग जो जाके लोगों के पास में वोट के लिए अपील करना। Constituency, particular areas, it refers to an area delimited for the purpose of election. Then is your electorate, it refers to the entire body of people who are qualified to vote. Electorate उनको कहते हैं जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं, जो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन, then is your election manifesto. Election manifesto, a document published by each political party before election. आपने देखा होगा हर इलेक्शन से पहले लोग अपनी अपनी पार्टी के बारे में वो अपने पैम्फलेट्स छाप के देते हैं, दैट इज़ ऑल नोन एज इलेक्शन मैनिफेस्टो। देन इज़ योर फ्रेंचाइज, रेफर्स टू द राइट ऑफ पीपल। फ्रेंचाइज मीन्स राइट ऑफ पीपल टू वोट।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम बार बार बोलते हैं, तो दैट दे हैव टेकन. देन इज़ योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एवरी इंडियन सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स अबव. तो ये उसके लिए है. फ्रेंचाइज का मतलब सिर्फ राइट ऑफ पीपल है टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. देन इज़ योर वन पर्सन वन वोट. ये दिस इज़ अप्लाइड इन आर पॉलिटिक्स, इन आर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. ये एक पर्सन को एक ही वोट दिया जाने का अधिकार है और उसकी एक ही वैल्यू होती है. सीक्रेट बैलेट सिस्टम ऑफ कास्टिंग वंस वोट इन सीक्रेसी. टुडे वी आर हैविंग द ईवीएम्स, तो उसमें तो बिल्कुल ही सीक्रेसी को फॉलो किया जाता है, तो दैट इज़ सीक्रेट बैलेट. पब्लिक ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन ऑन ऑल मेजर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़. ये पब्लिक ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन. जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल बाद में होते हैं और वो हम हर समय करवाए जाते हैं, यानी आफ्टर एवरी 5 years. दैट इज़ डन. आई होप you have people have been clear.